Hello friends, welcome back on my YouTube channel. Today's topic is asthma. Asthma is a chronic long-term lung disease. It affects your airways, the tubes that carry air in and out of your lungs. When you have asthma, your airways can become inflamed and narrow. This can cause wheezing, coughing, and tightness in your chest. When these symptoms get worse than usual, it is called an asthma attack or flare-up. अस्थमा एक पुरानी लंबे समय तक चलने वाली फेफड़ों की बीमारी है जो आपके वायुमार्ग को प्रभावित करती है। नलियाँ जो आपके फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लेके जाती हैं। जब आपको अस्थमा होता है तो आपके एयर पाइप वायुमार्ग में सूजन और संकुचन हो जाता है। इससे आपके सीने में घरघराहट, खांसी और जकड़न हो सकती है। जब ये लक्षण नॉर्मल से अधिक हो जाते हैं तो उसमें अस्थमा का दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कॉजेस ऑफ अस्थमा। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अस्थमा इज अननोन. Genetic and your environment likely play a role in who gets asthma. An asthma attack can happen when you are exposed to an asthma trigger. An asthma trigger is something that can set off or worsen your asthma. Asthma symptoms. Different trigger can cause different types of asthma. अस्थमा का सही कारण अज्ञात है। जेनेटिक्स और पर्यावरण संबंधा अस्थमा को पाने में भूमिका निभाता है। जब आपका अस्थमा ट्रिगर के कांटेक्ट में आता है तो अस्थमा का दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अस्थमा ट्रिगर एक ऐसी चीज़ है जो आपके अस्थमा के लक्षण को बढ़ा सकती है और ख़राब कर सकती है। ट्रिगर अलग अलग प्रकार से अस्थमा का कारण बनती है। Two types of asthma. First one is allergic, second is non-allergic. First is allergic. Allergic asthma is caused by allergens. Allergens are substances that cause an allergic reaction. They can include dust mites, molds, pets, pollens from grass, trees, and weeds. Second is pets. एलर्जिक अस्थमा एलर्जी के कारण होती है। एलर्जी एक ऐसा पदार्थ है जो एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं, जिसमें शामिल है धूल के कण, पालतू जानवर, सांचे में डालना या फिर घास, पेड़ या माध्यम से पराग। सेकेंड इज नॉन एलर्जिक अस्थमा is caused by triggers that are not allergens, such as first one is breathing in cold air, second is household chemicals, third is certain medicals, and fourth is outdoor air pollution. नॉन एलर्जिक अस्थमा उन ट्रिगर से होता है जो एलर्जी पैदा करने वाले नहीं हैं, जैसे ठंडी हवा में सांस लेना, कुछ मेडिसिन्स, घरेलू केमिकल्स या बाहर का पॉल्यूशन। रिस्क फॉर अस्थमा. Asthma affects people of all ages, but it is often started during childhood. Certain factors can raise your risk of having asthma. First is being exposed to secondhand smoke when your mother is pregnant with you or when you are a small child. Second is being exposed to certain substances at work, such as chemical irritants or industrial dust. Third is genetic and family history. You are more likely to have asthma if one of your parents has it, especially if it's your mother. अस्थमा सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन ये अक्सर बचपन के दौरान शुरू होता है। कुछ रीज़न आपके अस्थमा के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। पहला, जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट हो या आप छोटे बच्चे हों, सेकेंड हैंड धुएं के कांटेक्ट में आने से अस्थमा बढ़ सकता है या आपको भी हो सकता है। काम पर, ऑफिस पर जाते समय जो फैक्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं या धुआं निकलता है, उससे आपको दोबारा से अस्थमा हो सकता है या आपका अस्थमा बढ़ सकता है। थर्ड इज़ जेनेटिक यानी आनुवंशिक और परिवार के इतिहास में यदि माता पिता में से किसी एक को हो तो अस्थमा होने की संभावना होती है, और ख़ासकर यदि माँ को हो तो आपको होना ही है। Now study about symptoms of asthma. Symptoms of asthma. The symptoms of asthma included first chest tightness, second especially coughing at night or early morning. Third is
shortness of breath. Fourth is wheezing, which cause a whistling sound when you breathe out. These symptoms can range from mild to severe. You may have them every day or only once in a while. When you are having an asthma attack, your symptoms get much worse. The attack may cause or gradually or sudden. Sometimes they can be life-threatening. They are more common in people who have severe asthma. If you are having asthma attack, you may need a change in your lifestyle. अस्थमा के लक्षण निम्न है, जैसे सीने में दर्द, खांसी विशेषकर सुबह में या फिर रात में आए, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, घरघराहट जो सांस छोड़ते समय सीटी की आवाज़ का कारण बनती है। ये लक्षण हल्के से गंभीर भी हो सकते हैं। जब आपको अस्थमा का दौरा पड़ता है तो आपके लक्षण और भी बदतर हो जाते हैं। दौरे अचानक या धीरे धीरे आ सकते हैं, कभी कभी जीवन भर के लिए खतरा बन जाते हैं। ये उन लोगों के लिए नॉर्मल है जिनको सीवियर अस्थमा है। यदि आपको दौरा पड़ता है तो आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। अस्थमा डायग्नोस्ड। योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में यूज़ मैनी टूल्स टू डायग्नोज अस्थमा। First is physical exam, second is medical history, third is lung function test including spirometry to test how well your lungs work. Fourth is test to measure how your airways treat or read to specific exposure. During this test, you inhale different concentration of allergies or medicines that may tighten the muscle in fourth airways. Spirometry is done before and after the test. अस्थमा से निदान पाने के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पहला, शारीरिक परीक्षा की जाती है। दूसरा, चिकित्सा का इतिहास जाना जाता है। तीसरा, आपके लंग्स कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं इसका टेस्ट किया जाता है स्पायरोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू। फोर्थ इज ये देखने के लिए टेस्ट करें कि आपका विंडपाइप वायुमार्ग विशिष्ट जोखिम पर प्रतिक्रिया करते हैं या किस तरीके से वर्क कर रहा है। इस टेस्ट में आप मेडिसिन और विभिन्न संवेदना से सांस लेते हैं जो आपकी वायुमार्ग की मांसपेशियों को कसते हैं। ये टेस्ट स्पायरोमेट्री के बाद किया जाता है। नाउ स्टडी अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ फॉर अस्थमा। इफ़ यू हैव अस्थमा, you will work with your healthcare provider. Sometimes asthma is severe and cannot be controlled with other treatments. If you are an adult with uncontrolled asthma, in some cases your provider might suggest bronchial thermoplasty. This is a procedure that uses heat to shrink the smooth muscles in the lungs. Shrinking the muscles reduces your airways ability to tighten and allow you to breathe more easily. The procedure has some risk, so it's important to discuss them with your provider. यदि आपको अस्थमा है, आप काम कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान पर या अपने डॉक्टर से डिस्कशन करते हैं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहिए। समटाइम्स कभी कभी अस्थमा गंभीर होता है और इसका ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि आप अनकंट्रोल अस्थमा से पीड़ित हैं तो कुछ मामलों में आपके डॉक्टर ब्रोंचियल थर्मोप्लास्टी का सुझाव दे सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंग्स की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए गर्मी का यूज़ किया जाता है या गर्मी का यूज़ करते हैं। वायुमार्ग की जो दीवार होती है उसको कसने की क्षमता को कम किया जाता है और उसकी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आप ईज़िली सांस ले पाते हैं। प्रोसीजर में कुछ जोखिम होता है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से उस चीज़ पर डिस्कशन करना चाहिए, पता करना चाहिए आपके लिए वो बेटर है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।